I am telling about the great story, the devotee of Lord Jagannath. So this story is very interesting for you. So now I am telling about a great butcher. He is a butcher. His family business was sold meat to his customer. So this butcher name is Sadan. He was the great devotee of Lord Vishnu. But his comes from which family? Butcher's family. His family business is sold the meat to his customer. But Sadar did not like to kill the animal, so that he purchased some meat from the another butchers and sell to his customer. So it was the life of butcher Sadar. So when Sadar sell to the meat, so he was used butt cut to sell the meat to his customer. One day, a sage went to this roadside. He saw the Sadhan is using Salagram Sila, yani Vishnu Sila, for measuring the meat. But Sadhan did not know what is the real stone is this, but says know that it was the Vishnu Sila. So says came to the Sadhan and asked him, so please kindly give me this stone. Sadhan is very devotees of Lord Sri Krishna, and he gave to this stone to the sage. And sage came to his house and to properly worship the stone and stay in his house. But in that night, the sage dreaming the unexpected dream in his life. The Lord Vishnu came to his dream and said to the sage, I am very happy with Sadan. I don't have any options of against of Sadan. So please give to the Sadan to me. Please give to Sadan. So next day morning, early morning, sage wake up in the bed and go to the Sadan's house and give the respect to Sadan because he is the great devotee of Lord Vishnu. And sage explain everything in front of Sadan. Sadan, when she heard about this story, Sadan is very sad or guilty in his life what was done with this stone. And he decided and asked to sage, so sage, please tell me, where is Lord Vishnu? The sage gives the advice to Sadan. Lord Vishnu is seated in Ratni Singhasan. So nowadays, he is Jagannath, Lord Jagannath. And Sadan started walking to reach the Puri. But in that time, the road transportation facility is not available, so that Sadan go to his walkable. So next time, so when Sadhana went to the Puri, he saw a village is there and the sun set in that village. The night has come. Then Sadhana knocked a door, gentleman door. The gentleman opened the door and Sadhana explained everything in front of husband and wife. So they are very happy and give to Sadhana to stay in the night in their house. But the husband and wife is very cunning. And when he saw the Sadan is the very handsome guy in that time. But जो husband and wife थे, wife सदन को देखने के बाद सदन की प्रेम में मोहित हो गया और होने के बाद और सारे जैसे अतिथि सत्कार करते हैं कर लेते हैं और जब रात होता है
जिस घर में सदन है उस घर में हस्बैंड वाइफ रहते थे। वाइफ आता है रात 2 बजे सदन को प्रेम भिक्षा करने के लिए, सदन जी मेरे साथ आप सेक्स कीजिए। और सदन क्या था बेटा? विष्णु भक्त था। सदन वॉज द ग्रेट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड विष्णु। His main aim to reach the Puri and to see the Jagannath. So that was his aim. So listen to me. Without your goal, nothing is important in your life. So that it is very very important. Sadhan का main focus क्या था? How to reach the Puri and see the Lord Jagannath. So that was the aim. और सदन के पास वो पत्नी आकर जितना प्रयास किया सदन को भड़काने के लिए, लेकिन सदन क्या बोल रहा था? बहन जी, माँ जी, मैं आपका पुत्र जैसा हूं, आप ऐसे सोच विचार मत रखिए। और ऐसे करते करते जब निराश होते हैं वो लेडी, उसके बाद वो पति को मार देते हैं। वो जो पति था, उनसे पहले जो पति था, उसको मार देता है। और मारने के बाद सदन के पास आता है। सदन के पास फिर प्रेम भिक्षा करने की लग जाता है और सदन मना कर देता है, बिकॉज द सदन वॉज द ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ एंड ऑल्सो विष्णु। और ऐसे जब करता है, वो जो वुमेन था, द वुमेन एक्टिंग करने लग जाता है। वो क्या कहता है? हम लोग रात को उसको रहने के लिए हम लोग जगा दिए, लेकिन आज वो क्या कर रहे हैं? मेरे पति को मार दिए हैं और मेरे साथ बलात्कार करने के लिए सोच रहे थे। जब ऐसे विचार उन नारी के मन में आता है, और गांव वाले जो थे सदन को क्या करते हैं? पनिशमेंट देते हैं, 2 हाथ को काट देते हैं। और काटने के बाद, लेकिन उसका मेन फोकस, मेन एम क्या था? मैं जगन्नाथ जाऊंगा, श्री मंदिर जाऊंगा और जगन्नाथ को दर्शन करूंगा और सारे क्वेश्चन में पूछूंगा और मेरे क्षमा प्रार्थना करूंगा जो मैंने गलत किए हैं। और ऐसे जब उसके मन में आता है और 2 हाथ में ब्लड बह रहा है, और फिर भी चलता है पुरी, और पुरी पहुंच जाता है। और पुरी पहुंचने के अठरनला के पास पहुंच जाता है, और पुरी मंदिर पहुंचने की उसके बड़ी में ताकत नहीं था। और जब ऐसे भगवान से, अठरनला से भगवान को प्रार्थना करता है, जगन्नाथ जी आप आ जाइए, मैं आज जाने की क्षमता मेरे अंदर नहीं है। और ऐसे जब भक्त की पीड़ा जगन्नाथ जी के पास पहुंचता है, इमीडिएटली गिव इंफॉर्मेशन टू पुरी बड़ पंडा, and the panda comes to devotee of southern, और सारे चीज बता देता है, जगन्नाथ जी ने मुझे भेजे हैं आपको लेने के लिए। और सदन को पहुंचा देते हैं गरुड़ स्तंभ के आसपास। जब पहुंच जाता है सदन, जगन्नाथ जी को बोलते हैं, प्रभु मेरे साथ यह क्यों हुआ? मैं क्या गलत किया था? मेरे साथ इस सारे हादसा हो चुका। और जगन्नाथ जी उस समय सदन को बताते हैं, बेटा देखिए, जो आदमी का कर्म का फल होता है ना, उसको भुगतना पड़ता है। और वो जो आपके पिछले जन्म की कर्म फल आपको भुगतना पड़ता है। आप एक ब्राह्मण थे, और ब्राह्मण होने के नाते आपकी जिम्मेवारी होता है गौ माता को रक्षा करना। लेकिन एक कसाई उस रास्ते में गौ माता को लेकर चलता था, और आप हेल्प किए थे गौ माता को ढूंढने के लिए। सो ये था आपकी गलती। सो इस गलती की वजह से वो जो पत्नी था वो गौ माता थे, जो हस्बैंड था वो कसाई था। गौ माता को कसाई ने उस समय उसका देहांत कर चुका था। सो इसीलिए गौ माता ने उस पति को मार दिया, और आपको ये पनिशमेंट मिला क्योंकि आप हेल्प किए थे। सो इसीलिए आपकी दोनों हाथ को काट दिया जाता है। सो उसके बाद भगवान जगन्नाथ ने उसका इतना प्रेम में मोहित हो गया, डिवोटी ऑफ सदन के इतना भक्ति था, भगवान ने सदन को माफ कर दिया और सदन को क्या दोनों हाथ फिर लौटा दिए। मैंने कहने का बात ये था बेटा, जो भी हम लोग काम करते हैं ना, काम को भगवान को समर्पित हो जाना चाहिए। और जो भी किसी लाइफ में लॉस्ट आ जाता है, लॉस्ट मतलब काम का भावना आ जाता है, उस समय हम लोग खुद को बदलना पड़ेगा। उस समय भगवान के पास जाना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग लाइफ में सदन जैसा आपके साथ होगा। सो इसीलिए आपको एक चीज बता देता हूं, कभी भी किसी समय पे आप कुछ गलत करने से पहले आपकी कर्म फल के बारे में सोचना चाहिए। इंसान की कर्म से वो इंसान बड़ा होता है और नाम कमाता है। सो इसीलिए आप काम के ऊपर फोकस कीजिए। जो आपकी गोल था, सदन का क्या गोल था?
जगन्नाथ जी के पास जाना था और जगन्नाथ जी को देखना था। वो मेन गेम था। कितना मुसीबत क्यों ना आ जाए, मैं जगन्नाथ जी के पास पहुंच के रहूंगा, ये था उसका गोल। आपका गोल बना लीजिए और उस गोल को फोकस कर दीजिए। लाइफ में बहुत सारे लड़की आएंगे, बहुत सारे लड़का आएंगे, आपको प्रेम निवेदन करेंगे, उस प्रेम में कोई भी वैल्यू नहीं है। आप पहले सफल हो जाइए, उसके बाद आप उस प्रेम को इंजाम देने के लिए सोचेंगे। सो ये था जगन्नाथ जी का स्टोरी। नेक्स्ट सेशन में हम लोग बताएंगे और एक स्टोरी। थैंक यू सो मच।